Good morning students. Welcome to Shiv Jyoti Educational Group Kota. This is Barkha Gaur, your biology teacher. How are you students? I hope all of you are fine and doing well, revising the chapters, going through all the videos and PDFs. So students, as you know that revision is going on these days, we are going to revise chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants of your biology class 12th. So let us begin with the important points of this chapter. And before we start, open your book, page number 19, and basically it is starting the topics, the important points are starting from page number 20. So open page number 20 and let us revise the things with the help of important points. Now what is a flower? You all are familiar with this. Flower is the reproductive part of the plant and it helps in the formation of new generation. So we will divide the process in three parts: pre-fertilization, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. इस तरह से हम पूरा चैप्टर समझेंगे. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम देखेंगे हाउ आर द सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म, दैट इज एंड्रोशियम एंड गायनोशियम का डेवलपमेंट कैसे होता है. सो चिल्ड्रन, एंड्रोशियम इज द ग्रुप ऑफ स्टेमन्स. स्टेमन इज व्हाट? It is the male reproductive part of the plant in which we can say that stamen is divided into two parts like filament and anther. Filament is the stalk like structure and anther is the part where male gametes are produced. So how these male gametes are produced? Let us revise it. So we will study the structure of microsporangium. That means the microsporangium क्या है? जिसमें microspores develop होंगे and through which pollen grain बनेंगे और pollen grain में male gametes का formation होगा. तो microsporangium का structure उसको हम explain करेंगे and the process of microsporogenesis. You can refer in your book page number 20. And this topic is starting from page number 21. So in the structure stamen and anther का भी part दिया हुआ है. Then microsporangium का structure देखें तो उसका transfer section का आपको diagram भी देखना पड़ेगा book में, page number 22 पे figure 2.3, through which you can understand the structure of microsporangium. You can see in your book that the whole structure is made up of 4 wall layers. Wall layers होती हैं 4 wall layers जो कि endothecium. These are the 4 wall layers. क्या क्या हैं देखिए, epidermis, endothecium and middle layers and the tapetum. Now epidermis, endothecium and middle layers ये तीनों प्रोटेक्शन का काम करती हैं और डिहाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करते हैं. डिहाइसेंस मीन्स जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो बर्स्ट हो जाता है, दैट इज व्हाट डिहाइसेंस. एंड द लास्ट लेयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेपिटम. इस पे क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेपिटम. तो tapetum helps in providing the nutrition to the developing pollen grain या developing जो male gamete है उसके development में nutrition provide करता है. Okay, then we will see the structure of pollen grain. Pollen grain का structure अगर हम देखें तो pollen grain is made up of 2 cells, that is generative cell and vegetative cell. One is the bigger one and the vegetative cell is the smaller one. और इसके अलावा pollen grain का structure आप देखें तो it is made up of 2 layers, exine and intine. Exine is the outermost layer which is made up of sporopollenin and intine is the inner layer which is made up of cellulose and pectin. Exine में pores भी होते हैं जिनको germ pores कहते हैं, through which the pollen tube will come out. So ये थोड़ा सा structure हुआ pollen grain का and we have seen how the male gamete develops. Now we come to gynoecium. Gynoecium में the female reproductive part है gynoecium which is composed of pistils. ठीक है, तो gynoecium is the female reproductive part and it has pistil या carpels हम कह सकते हैं. Now the carpels may be 1 in number or it may be more in number. अगर 1 है तो monocarpellary condition कहलाती है या ovary will be called as monocarpellary and if there are more number of carpels so it will be called as multicarpellary. Then when it is multicarpellary condition तो 2 conditions और हो सकती हैं. Syncarpous means the pistils are fused या carpels are fused together and apocarpous means the pistils are free, they are free from each other. Now we will see the structure of pistils which is made up of stigma, style and ovary. ये सब आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में भी, stigma, style and ovary. Stigma through which pollen lands on the stigma and style में से क्या होगा, pollen tube style में से होते हुए ovary में then ovule में पहुंचती है and ovary is the basal part of the
पिस्टिल। नाउ लेट अस सी द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ये किस तरह से इसमें फॉर्मेशन होता है फीमेल गैमेटोफाइट का। नाउ दिस डायग्राम, इस डायग्राम को आप मार्क कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस डायग्राम पे क्वेश्चन हमेशा आता है कि या तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, इसको एनाट्रोपस ओव्यूल भी कहते हैं, इन्वर्टेड ओव्यूल दिख रहा है ये, या फिर मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। तो ये ओव्यूल है एक्चुअली। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन दिस ओव्यूल, जैसे कि फ्यूनिकल, ये क्या शो करेगा, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल एंड प्लेसेंटा को ये शो करता है कि किस तरह से ये अटैच्ड है। देन माइक्रोपाइल है या हाइलम, हाइलम ये वो पार्ट है जहाँ से ये अटैचमेंट हो रहा था। देन फ्यूनिकल, देन हाइलम, देन माइक्रोपाइल। देखो यहाँ पे जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स आपस में ज्वाइन नहीं हो रही हैं, दिस होल, दिस पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल पोल कहलाएगा। दिस इज चैलेजल पोल, जहाँ पे चैलेजा प्रेजेंट है वो चैलेजल पोल, एंड दिस इज माइक्रोपाइलर पोल। देन इंटेग्यूमेंट्स, टू लेयर्स है इंटेग्यूमेंट्स की, आउटर एंड इनर। देन न्यूसेलस, ओव्यूल के जस्ट बाहर की जो लेयर है वो न्यूसेलस कहलाती है, एंड इनसाइड इट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक विल टेक्स प्लेस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। नाउ लेट अस सी हाउ द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्स। तो इस प्रोसेस को, द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। हाउ द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, एक्चुअली ओव्यूल स्टार्ट्स डिफ्रेंशिएटिंग और ये मेगास्पोर मदर सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। दिस मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मेयोटिकली टू गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। तो यहाँ पे ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स यहाँ पे बनेंगे, out of which 3 gets degenerated, but only one, that is 4th one, will germinate and give rise to mega gametophyte, that is female gametophyte इस एक मेगास्पोर से बनेगा। Now as यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि why या what is monosporic development of female gametophyte, which means कि only one megaspore is taking part in the development, so it is called monosporic development. Now we'll see कैसे पूरा डेवलपमेंट होता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक कब बनेगा या कैसे बनेगा। इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझा रही हूँ। नाउ एज वी हैव सीन इन द ओव्यूल वाले डायग्राम में हमने देखा था, अभी हमने कहा जैसे वन मेगास्पोर विल जर्मिनेट। अब ये मेगास्पोर जो है ये डिवाइड होता है माइटोटिकली, फर्स्ट 2 सेल्स बनेंगे, देन इट डिवाइड्स, न्यूक्लियाई बनते हैं एक्चुअली, द वन न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2, देन 2 becomes 4 and 4 becomes 8। तो इस तरह से ये 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे कि ये कंडीशन आ जाती है 8 न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड। ओके, देन स्लोली उन न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल बनने लगती है। लेकिन ये जो आप यहाँ देख रहे हो सेंटर में, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये दो ही रहते हैं, ये दे आर 2 इन नंबर, और इनके आसपास सेल वॉल नहीं बनेगी। तो वी कैन से कि ये 7 सेल्स तो हैं लेकिन न्यूक्लियस 8 है इसमें। नाउ इनका डिफ्रेंशिएशन होगा। डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा कि 3 जो सेल्स है, आउट ऑफ दोज 8 न्यूक्लियस 3 आर अरेंज्ड हियर ऑन द टॉप, दैट मीन्स एंटीपोडल पोल पे, तो इसमें ये एंटीपोडल सेल्स बन गए। नीचे यहाँ पे 2 सेल्स सिनर्जिड्स कहलाते हैं, एंड 1 इज एग सेल। हियर 1 फिलीफॉर्म एपरेटस इज देयर। नाउ क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। तो व्हेन द पॉलन ट्यूब कम्स हियर, पॉलन ट्यूब जब ऊपर से होते हुए यहाँ आएगी, तो द फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड द पॉलन ट्यूब, गाइड करेगा कि इन विच वे इट हैज टू एंटर। देन इन द सेंट्रल, ये सेंट्रल सेल कहलाएगा, एंड इट हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ जाकर वी कैन से कि जो मैच्योर गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज कहलाती है। इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। यहाँ पे भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि एट दिस स्टेज, या जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है वो उसमें कितने न्यूक्लियस और कितने सेल होते हैं। तो इट मीन्स इट इज एट 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्टेज। नाउ वी कम, जैसे यहाँ पे हमने देख लिया डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स हो गया। नाउ विल सी पॉलिनेशन। नाउ व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma। जैसे आपने पिछली क्लासेस में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा है, तो सिमिलरली वी कैन से ऑटोगैमी। ऑटोगैमी इज अ काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन इसमें भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। अब कैस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ये कभी ओपन नहीं होंगे, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर इन विच दे ओपन भी होते हैं, और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। गिटेनोगैमी, अच्छा ऑटोगैमी में क्या था
ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, फ्लावर सेम ही होगा. नाउ इन गिटेनोगैमी द फ्लावर विल बी डिफरेंट बट द प्लांट विल बी सेम. ओके, सेम प्लांट पे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में भी पॉलिनेशन हो सकता है. एंड जीनोगैमी इज टोटली डिफरेंट. किस तरह से कि एक प्लांट को छोड़कर दूसरे प्लांट का अगर एंथर पॉलन ग्रेन वहां से एंथर से स्टिग्मा पर आता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर. तो ये गेटेनोगैमी में क्या होगा, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, लेकिन जेनेटिकली वो सेम होगा, है ना, जीन्स क्योंकि सेम प्लांट के. लेकिन जीनोगैमी में इट विल बी जेनेटिकली डिफरेंट क्योंकि वो डिफरेंट प्लांट से आ रहा है, लेकिन स्पीशीज सेम होगी. क्लियर? Now agents of pollination, all of you are very familiar with this कि wind, water, animals, biotic and abiotic agents हैं जो pollination में help करते हैं. wind pollinated अगर flower होगा या wind के जो wind pollinated flower के जो pollen grains होंगे वो कैसे होंगे, बहुत light होंगे, non sticky होंगे ताकि वो easily wind में carry हो सके. pollination by water, pollination of water aquatic plants में होगा and they float in the water and reach from one plant to another. लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी है कि म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है so that वो वाटर में खराब नहीं हो. पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, अब ये एनिमल्स में जैसे इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर भी कह सकते हैं हम इनको. इसमें क्या स्पेशलिटी होगी कि दे हैव वेरी गुड फ्रेग्रेंट, और फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होगी, देन कलर भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे so that insects and animals get attracted for पॉलिनेशन. तो इनका ये पॉलिनेशन इस तरह से होगा. अब वन मोर टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ब्रीडिंग डिवाइस. आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, एक्चुअली प्लांट्स में जब कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो प्लांट्स में एक तरह की इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है. मीन्स देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिकली प्लांट सेम तरह के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो देयर इज डिप्रेशन कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. टू प्रिवेंट दैट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन द प्लांट्स हैव, मतलब प्लांट्स ने कुछ डेवलप कर रखे हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ताकि उनमें मैक्सिमम क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो. तो ऑटोगैमी को प्रिवेंट करना है उनको, तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं देखिए. जैसे कि जो फ्लावर की पोजीशन होगी, फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा की जो पोजीशन है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी अगर, तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे. ऐसे ही एक है कि प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या फिर जो एंथर की मेच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, ये दोनों अगर अलग अलग टाइम पे हो जाए तो भी सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं या ऑटोगैमी को अवॉइड कर सकते हैं. सिमिलरली गेटेनोगैमी को अवॉइड करने के लिए जैसे कुछ प्लांट्स हैं जिनमें सिर्फ या तो मेल फ्लावर ही डेवलप होते हैं या फिर फीमेल फ्लावर ही डेवलप होते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस. नाउ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, देखा जैसे कि अगर किसी डिफरेंट फ्लावर का पॉलन किसी डिफरेंट फ्लावर पे आकर लैंड करता है तो देयर विल बी नो इंटरेक्शन, कोई पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का ये मतलब होता है कि जब सेम स्पीशीज का पॉलन अगर लैंड करता है स्टिग्मा पर, सेम स्पीशीज होना चाहिए, देन ओनली पॉलन ट्यूब विल अराइज एंड इट विल सेंड द मेल गैमेट टू द ओव्यूल. तो ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, विच मीन्स कि हम कंट्रोल्ड पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं. हम अपनी मर्जी के पॉलन को किसी फ्लावर पे लैंड करवाना चाहते हैं या स्टिग्मा पे लैंड करवाना चाहते हैं ताकि जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स है वो आए आने वाले ऑफस्प्रिंग में. तो दैट कैन बी डन बाय emasculation and bagging. Now what is emasculation? Removing of anthers. Suppose flower bisexual है and anthers develop हो गए तो we will cut the anthers, so that is called emasculation. And after cutting the anther, जो हमको desired pollen है, जिस भी दूसरे plant का अगर हमें किसी plant का particular pollen उस पे डालना है तो we will dust the pollen of that particular plant and then we will cover the stigma. Stigma पे जो pollen हम चाह रहे हैं उसी को वहाँ पे डस्ट करवाएंगे. तो आफ्टर डस्टिंग द पॉलन ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी वी कवर द स्टिग्मा विच इज कॉल्ड एज बैगिंग. क्लियर? देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, अब पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया. नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. दो चीजें जैसे हमने पढ़ा भी है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा है. तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था, दो चीजें फ्यूज होकर आपस में कंबाइन हो रही थी. वन ऑफ द male gamete fuses with egg cell
तो बनेगा जाइगोट एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई। अभी समझाया था आपको पोलर न्यूक्लियाई से जब फ्यूज होंगे तो एंडोस्पर्म बनेगा। व्हेन द मेल गैमेट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है एंड व्हेन द मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल तो जाइगोट बनता है। ठीक है, तो ये दो चीजें बनेंगी, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एंडोस्पर्म, जैसे अगर डाइकॉट प्लांट है तो एंडोस्पर्म हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग या जर्मिनेटिंग सीड। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ एम्ब्रियो इन आवर कोर्स, दैट इज डाइकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट सीड का जो डेवलपमेंट देखें तो डाइकॉट एम्ब्रियो में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि एम्ब्रियोनल एक्सिस, देन एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड प्लूम्यूल एंड रेडिकल। ये स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट है? डाइकॉट एम्ब्रियो में। आप अपने बुक में डायग्राम रेफर कर सकते हो। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल और नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। प्लूम्यूल गिव राइज टू शूट एंड रेडिकल गिव राइज टू रूट। ऐसे ही प्लूम्यूल जो रूट टिप होती है उसको कवर करने के लिए रूट कैप भी होती है। मोनोकॉट एम्ब्रियो अगर देखें तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में कॉटिलेडन्स नहीं है, उसकी जगह एक नाम दिया हुआ स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम इज देयर। ठीक है, ऐसे प्लूम्यूल को कवर करने के लिए कोलियोराइजा है और रेडिकल को कवर करने के लिए कोलियोप्टाइल, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, गो थ्रू द डायग्राम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ वी कम टू सीड्स एंड फ्रूट्स। सीड्स का डेवलपमेंट, सीड को अगर आप देखें तो उसमें सीड कोट प्रेजेंट होता है और कॉटिलेडन्स होते हैं। अगर डाइकॉट सीड है तो 2 कॉटिलेडन्स होंगे, मोनोकॉट सीड है तो सिंगल कॉटिलेडन होंगे, बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। नाउ देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ, अगर एंडोस्पर्म रहता है, परसिस्ट करता है, जैसे कि मोनोकॉट्स में होता है, तो दैट काइंड ऑफ सीड विल बी कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनस सीड। एंड इफ एंडोस्पर्म इज यूज्ड, दैट इज फिनिश्ड, then it is for example in pea, जैसे डाइकॉट्स में होता है, तो it will be called as non albuminous seed. clear? and sometimes जैसे न्यूसिलस पढ़ा था अभी हमने, न्यूसिलस भी अगर आगे चल के परसिस्ट करता है, if it is present, तो एक जैसे ब्लैक पेपर में होता है, तो it is called as perisperm. if न्यूसिलस persist then it is called perisperm. नाउ वी कम टू फ्रूट। सीड के बाद फ्रूट पे आते हैं। 2 काइंड्स ऑफ फ्रूट आर देयर, जैसे ओवरी बिकम्स द फ्रूट है ना, ओव्यूल बिकम्स द सीड एंड ओवरी बिकम्स द फ्रूट। फ्रूट्स आर ऑफ 2 टाइप, डिपेंडिंग के फ्रूट प्लांट के या फ्लावर के किस पार्ट से बना है। अगर फ्रूट फ्लावर के ओवरी से बनता है डायरेक्टली, मतलब ओनली ओवरी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, देन दे आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। बट इफ एनी अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर लाइक थैलेमस, जैसे एप्पल में एप्पल फ्रूट बनता है फ्लावर के थैलेमस से, तो थैलेमस या एनी अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, देन इट विल कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। अनदर काइंड ऑफ फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बन जाता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, मतलब इसमें सीड्स नहीं होंगे, दैट इज फॉर एग्जाम्पल बनाना। देन एपोमिक्सिस, ये एक तरह का mimicry of sexual reproduction है। Apomixis is the mimicry of sexual reproduction, then that is called apomixis. And the last topic is polyembryony. Sometimes embryo एक से ज़्यादा अगर होते हैं, if more than 1 embryo is formed, then it will be called as polyembryonic condition. So children, these were the important points of the chapter. Now we will discuss some of the important questions of the. So let us begin with the question number 1 of your NCERT book exercise, that is, name the parts of an angiosperm flower in which development of male and female gametophyte take place. So children, as we have just understood that the development of male and female gametophyte takes place through the development of microsporangia and megasporangia. तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के डेवलपमेंट से मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, differentiate between microsporogenesis and megasporogenesis. तो we have very properly we have gone through both the process, हमने अच्छे से अभी समझे microsporogenesis and megasporogenesis, that is development of male gamete and development of female gametophyte. ठीक है, and which type of cell division occurs, तो जब भी gametes बनते हैं तो meiosis division, meiotic division होता है। Now this question is very simple कि you have to arrange the following terms इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली इनको अरेंज करना है आपको। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
with a neat and label diagram describe the parts of typical angiosperm ovule. अभी मैंने beginning में आपको बताया था, this is very important. Typical angiosperm ovule आपको draw भी करना है और उसका structure explain करना है. तो just now I explain you the structure. आप इसको just go through the answer and revise all the important parts जैसे funicle, hilum, integuments. अभी मैंने आपको पूरा detail में explain किया था. Then integuments, micropyle and chaliza. तो how the development of angiosperm ovule takes place, and you have to draw the diagram also, and you have to explain all its parts. सारे parts आप इसके explain करेंगे. ये diagram है. Practice this diagram again and again. Next question, what is meant by monosporic development? Just now I told you, this is again very important question. Monosporic development मतलब एक मेगास्पोर जो है, एक स्पोर ही डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट में. दिस इज व्हाट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट. तो आउट ऑफ 4 ओनली 1 मेगास्पोर डेवलप्स. फिर इसका पूरा डेवलपमेंट किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है. देन सी दिस डायग्राम. दिस डायग्राम इज गिवन इन योर बुक. यू हैव टू go through this diagram and practice this diagram for the development of female gametophyte. किस तरह से सारे सेल्स अरेंज होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे, एंड व्हाट इज देयर फंक्शन. यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कैस्मोगैमस फ्लावर. अभी हमने डिस्कस किया था अ फ्लावर दैट ओपन्स टू एक्सपोज एंड एंथर्स एंड स्टिग्मा. जिसमें एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं तो वो कैस्मोगैमस फ्लावर होगा. एंड द फ्लावर ओपन्स एट मैच्योरिटी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स. ये भी अभी हमने डिस्कस किया था किस तरह से पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रेसेप्टिविटी डिफरेंट टाइम में अगर होगी, वो सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होगा. सेल्फ पॉलिनेशन विल नॉट टेक प्लेस. ठीक है. तो इनकी टाइमिंग डिफरेंट होने से दिस कैन बी अवॉइडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये होता है कि अगर किसी डिफरेंट स्पीशीज का पॉलन अगर लैंड होता है किसी दूसरे फ्लावर पे, तो देयर विल इट विल शो इनकम्पैटिबिलिटी. मतलब यहाँ पे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं होगा. दैट मीन्स पॉलन ट्यूब विल नॉट ग्रो एंड फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस. तो दिस इज व्हाट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. व्हाट इज बैगिंग टेक्निक, हाउ इज इट यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम. तो अभी हमने देखा ही था बैगिंग टेक्निक मीन्स वी आर कवरिंग द स्टिग्मा. जब अपना डिजायर्ड पॉलन को उस पर लैंड करवा के, डस्ट करवा के हम उसको कवर कर देते हैं विद अ पेपर बैग, राइस पेपर जिस तरह का बैग होता है, इस तरह से उसको कवर कर देते हैं सो दैट उसमें फर्दर कोई कंटामिनेशन नहीं होगा, किसी और फ्लावर के पॉलन्स का कंटामिनेशन नहीं हो. तो ये प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी बहुत हेल्पफुल है फॉर प्रिपेयरिंग हाइब्रिड्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है. व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन. अभी एक्सप्लेन किया था. फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है. एक न्यूक्लियस हो गया मेल गैमेट का और 2 न्यूक्लियस हो गए किसके, पोलर न्यूक्लियाई के. तो इनने मिलकर क्या बताया, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है बिकॉज 3 न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन दिस. और इससे किसका डेवलपमेंट होगा, एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म विल बी फॉर्म्ड. इसको हम ट्रिप्लॉइड रहेगा ये ना, बिकॉज देयर आर 3 सेट्स ऑफ न्यूक्लियस आर देयर. नाउ क्वेश्चन 12, व्हाई डू यू थिंक द zygote इज डॉर्मेंट फॉर सम टाइम इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. तो कई बार zygote डॉर्मेंट मीन्स इनएक्टिव हो जाता है सो दैट इट कैन पास ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन. ठीक है. तो अनफेवरेबल कंडीशन को पास ओवर करने के लिए या न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है, फॉर दैट इट गोज इनटू द डॉर्मेंट स्टेज. हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल अभी बताया था आपको. The cylindrical portion of the embryonal axis below the level of cotyledon is hypocotyle or above the level of cotyledon is epicotyle. कोलियोप्टाइल एंड कोलोराइजा, ये किस में मिलेगा आपको, मोनोकॉट सीड में कोलियोप्टाइल एंड कोलोराइजा मिलेंगे, मोनोकॉट एम्ब्रियो में. तो कोलियोप्टाइल इज द प्रोटेक्टिव शीथ विच एनक्लोजेज द शूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करेगा, एंड कोलियोराइजा एनक्लोजेज द रेडिकल एंड रूट कैप इन अ मोनोकॉट सीड. इंटेग्यूमेंट एंड टेस्टा. इंटेग्यूमेंट्स अभी हमने देखा था ओव्यूल में जो वॉल लेयर्स थी, डिफरेंट लेयर्स, वो इंटेग्यूमेंट थे. एंड टेस्टा इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड. पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प. पेरिकार्प तो
फ्रूट की आउटर वॉल होती है, एंड पेरिस्पर्म अभी आपको बताया था न्यूसेलस अगर परसिस्ट करता है तो वो पेरिस्पर्म होता है। What is meant by emasculation? Removal of anthers is called emasculation. It helps in plant breeding of desired characteristics. And parthenocarpy भी पढ़ा था हमने, अगर without fertilization fruit का formation होता है तो one can induce parthenocarpy through application of growth substances. Such fruits resemble a normally developed fruit, लेकिन वो seedless fruits होंगे। Role of tapetum बताया था आपको, nutrition in developing, जो मेल गैमेट है उसके डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो चिल्ड्रन, दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड यू गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस, एंड ऑलरेडी यू आर बीइंग सेंट दिस फाइल, PDF फाइल आपको दे रखी है। नाउ इन दिस टाइम विद द रिविजन वीडियो वी आर सेंडिंग यू द MCQs. So go through all these MCQs also, which are again important from exam point of view. So take care. Goodbye. Thank you.